Hello everyone, how are you? I hope you are all good. So, as you know, we are studying mathematics for the class 9th. Okay, so इसी को हम लोग आगे आज कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. एज यू नो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हम लोगों ने टेबल लर्न कर लिया था, वो भी 10 तक. आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हम लोग ने टेबल कहाँ तक सीख लिया था. 10 तक हम लोगों ने टेबल सीख लिया था. ओके, तो बताओ, अगर यहाँ तक आप सभी को आ रहा है तो वाई टाइप करो, और अगर नहीं आ रहा तो एन टाइप करो. यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? यस. ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने कवर कर लिया था. अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं. तो देखो, वी हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस. ओके, so you have to answer all these questions correctly. Okay, so the first question is 7 multiplied by 3. So what will be the value of 7 into 3? Can anyone tell me in the chat box? Which option will be correct? Yes. Yes. So option B will be correct because 7 threes are 21. Are you getting my point? Are you getting my point? Okay. Muhammad Akhtar Khan, please type only one Y. Okay, not so many Y. सिर्फ एक बार Y टाइप करिए, कई बार टाइप करने की जरूरत नहीं है. ओके, नो नीड ऑफ दिस. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज 8 6 are. So what will be the correct answer? What will be the correct answer? 8 6 are C. Okay, very nice. So the correct answer will be C, because when you multiplied 8 with 6, you will get 48. Okay, क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था 8 6 जार कितना होता है 48. Now tell me, what is the value of 6 8 hours? 6 8 hours. So which option will be correct? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? B. Very nice, good, very nice. So the option B will be correct. So let's solve question number 4. 9 nines are. What will be the correct answer? A, B, C, or D? Good, very nice. I can see clearly that all the answers which are written in the chat box are correct. Okay, that is very nice thing that you are guys enjoying this lecture and giving all the answers correct. Okay, so tell me what is the value will be 7 sevens are 49. 49. Okay, 49. So the correct answer will be option number A. Okay, option A will be correct answer because 7 sevens are 49. Okay, जैसे कि आपने देखा कि 7 का मल्टीप्लाई 7 में कराएंगे तो कितना आएगा 49 आएगा. ओके, वेरी नाइस. सो टेल मी, क्या आप सभी को यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए, और अगर नहीं तो एन टाइप करिए. प्लीज टाइप. ओके, ओके, वेरी नाइस. So let's solve a question which is coming on your screen. This is the required question. You have to solve it, and that's why I have disabled your comment, and you can answer this question on the poll. Okay, please answer this in the poll section. पोल सेक्शन में इसका आंसर करिए. बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. ठीक है. So the question is, choose the correct operation. 8 into 6 means you have to tell what will be the value of 8 6 are. So basically there will be only one correct option, A, B, C, or D. Please choose this in the poll section and yes, give your answer. I can see that many of you have
given the correct answer in the poll section. Those who have not answered it, please answer it in the poll section. ओके जिन लोगों ने अभी तक पोल में आंसर नहीं करा है, सो प्लीज पोल में इसका आंसर करिए, ठीक है? You have 30 seconds only. You have 30 seconds only, okay? If anyone have doubt, then you can ask me. So, ठीक है, 5 सेकेंड और, ओके 5 सेकेंड के बाद ही मैं पोल बंद कर दूंगा बेटा, तो प्लीज आंसर इट इन द पोल सेक्शन, अदरवाइज आई विल डिलीट द पोल, ओके? Only 5 seconds. Okay. So I am deleting the poll and अब आप आंसर कर सकते हो चैट बॉक्स में. What will be the correct answer? Yes, yes, very nice. So your question was choose the correct operation 8 into 6. So we have to solve it. प्रीवियस क्लास में आपको सिखाया गया था 8 6 कितना होता है? So the correct answer will be B. It means 48. Okay? Option number B will be correct. So we have to solve a puzzle which is shown on your screen. Okay? यहाँ पे एक पजल है जो कि अब आपको सॉल्व करना होगा. सो बेसिकली इसमें करते क्या है, हमें ये जो अननोन्स हैं ABCDEF, हमें इनकी वैल्यूज बतानी है. ओके, अब ध्यान से देखना आप. 5 का मल्टीप्लाई कराया जा रहा है 2 के साथ में, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 5 2 कितना होता है बेटा? चैट बॉक्स में बताइए. 5 2 10. So basically the value of A will be 10. Now you have to tell the value of B, C, D, E and F. ठीक है? So what will be the value of B? Can you answer it? 40. Okay, very nice. So जो बच्चे आंसर करना चाहते हैं they can answer in the chat box. So the answer will be 40. Very nice. How will you get that? So basically you have multiplied 10 with 4. Okay. So when you multiply 10 into 4, then you will get 40. It means the value of B will be 40 and the value of A is 10. So now what will be the value of C? What will be the value of C? Can anyone tell me in the chat box? Can anyone tell me in the chat box? 2. Very nice. So basically C की वैल्यू 2 होगी. क्यों होगी उसके पीछे का रीजन देखिए. हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका मल्टीप्लाई 5 के साथ कराने पर आंसर विल बी 10. तो ऐसा एक ही डिजिट है, वो है क्या? 2. When you multiply 2 with 5, then you will get 10. I hope you are getting my point. So the value will be 2. What will be the value of D? Please tell the answer in the chat box. Yes, very nice. Very nice. Some of you have write down all the answers related to this
puzzle, and that is a very nice thing. Muskan, okay, very nice beta, good. साहिल खान करके एक बच्चा है, इन्होंने भी करेक्ट आंसर करा है, वेरी नाइस, है ना, वेरी नाइस. So basically we have to multiply 10 with 8. As you know, 10 8s are 80. Okay. Now you have to tell the answer for E. What will be the value of E? E की वैल्यू क्या होगी? E की वैल्यू क्या होगी बेटा, कौन बताएगा? वेरी नाइस, E की वैल्यू 3 होगी. और अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो ये कैसे होगा, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 3 है और इसका आंसर आ रहा है 27. तो 3 में किस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दें कि वी विल गेट 27? सो द आंसर विल बी 9, बिकॉज व्हेन यू मल्टीप्लाई 9 विद 3 देन यू विल गेट 27. 9 3 27. अब बताओ, यहाँ पे हमें 9 लाना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कराना है? 3 का. तो 3 का मल्टीप्लाई किससे कराना पड़ेगा ताकि 9 आ जाए? तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से ही कराना पड़ेगा, बिकॉज 3 3s are 9. So basically the value of E will be 3, the value of F will be 9, ठीक है, the value of D will be 80, the value of C will be 2, the value of B will be 10, 10 for 40, okay, and the value of A will be 10. क्या आप सभी को ये समझ में आ गया? अगर हाँ तो वाई टाइप करो. And still, if you have any doubt, then you can ask me. Okay. No doubt? Very nice. Very nice. Keep it up. So this is the answer sheet for the respected puzzle. Now we have to learn table of 11. तो सबसे पहले आप लोग चैट बॉक्स में बताओ कि 11 का टेबल किसको किसको याद है. चैट बॉक्स में बताओ. जिनको भी याद है, ठीक है, वे वाई टाइप करेंगे. जिन्हें नहीं याद है वे एन टाइप करेंगे. ओके, वेरी नाइस. सो मैं जिस बच्चे से पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है. चलो, तो मैं पूछता हूं, प्रियांशु कुमार के नाम से एक बच्चा है, प्रियांशु कुमार. 11 का टेबल सुनाइए. प्रियांशु कुमार. चलो ठीक है. अभिषेक कुमार के नाम से एक बच्चा है, चलो आप सुनाओ. अब जब सुनाने को बोल रहे तो आप लोग बोल नहीं रहे हो, ये कौन सी बात हुई? कौन सुनाएगा? चैट बॉक्स में बताओ कौन सुनाएगा 11 का टेबल. सूरज तिवारी. ओके, सूरज तिवारी के नाम से जो बच्चा है वो 11 का टेबल सुनाइए. सूरज तिवारी के नाम से जो भी हैं. नहीं, कोई नहीं सुनाएगा. ओके, मुस्कान आप सुनाओ, ठीक है. 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 7 जा 27, 11 8 जा 88, 11 9 जा 99, 11 10 जा 110. बच्चों बताओ, क्या इन्होंने करेक्ट सुनाया? वेरी नाइस, ठीक है. देखो, इन्होंने बिल्कुल करेक्ट सुनाया. वेरी नाइस बेटा, कीप इट अप. सो अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो आप आंसर दो ना. इसीलिए तो मैंने पूछा सबसे पहले चैट बॉक्स में कि आप लोगों में से किसको किसको याद है. तो आप सभी लोगों ने बोला कि हाँ सर मुझे याद है. तो जब आपको याद है तो आपको सुनाना चाहिए ना, जब मैं आपका नाम लेकर के पूछ रहा हूं. तो बताओ, इतने देर बाद आंसर आया, ठीक है. ओके, गुड बेटा मुस्कान. सो बेसिकली यहाँ पे 11 का टेबल लिखा गया बेटा. यहाँ पे ध्यान से देखो आप. 11 1 जार 11 होता है, 11 2 जार 22, 11 3 जार 33, 11 4 जार 44, 11 5 जार 55, 11 6 जार 66, 11 7 जार 77, 11 8 जार 88, 11 9 जार 99 and 11 10 जार
110. So how will you get this table? By adding the numbers such as 11. Okay, जैसे कि आप यहाँ पे देखो ये 11 दे रखा है, तो इसको ऐड करके आप कैसे टेबल बना पाओगे? तो ध्यान से देखो, मेरी बात को ध्यान से देखना, समझना कि देखो ये 11 है ना, ठीक है, ये 11 को कितनी बार मल्टीप्लाई करा जा रहा है? तो 2 बार। इट मींस इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं 2 टाइम्स। When you add 11 2 times, then you will get 22. Isn't it? ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है बताइए चैट बॉक्स में। So basically, if you have to multiply 11 with 3, then alternate you can say that you have add 11 3 times. You have to add 11 3 times. So when you will add 11 3 times, then answer will be 33. Isn't it? ऐसा है या नहीं है बताइए? ऐसा है ना? वेरी नाइस। सो अगर इसी पैटर्न को बेटा मैं फॉलो करूं और अगर आपसे पूछता हूं कि बताओ 11 9 कितना होता है, तो आपका आंसर आएगा 99। तो बताओ मेरे को कि अगर इसको ऐड करके बनाना हो या ऐड करके आंसर लाना हो तो कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? हाउ मेनी टाइम्स यू शुड ऐड 11? 9 टाइम्स। वेरी नाइस, 9 टाइम्स, गुड। सो आप देख पा रहे हो ये 11 का टेबल किस तरीके से बन रहा है। देखो ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने बात किया हुआ था इसके बारे में कि हम लोग टेबल कैसे बना रहे हैं। तो टेबल बेसिकली हम लोग ऐड करके बनाते थे, जितने भी टाइम्स उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। सपोज 11 का मल्टीप्लाई आप 4 में करा रहे हो, इट मींस 11 5 जा 55। अब इसको आप और किस तरीके से बना सकते हो? तो 11 को 5 टाइम्स ऐड कर दो, तब आपका 55 आ जाएगा। कोई परेशानी तो नहीं है बेटा यहां तक? अगर नहीं है तो वाई टाइप करो, अगर नहीं है तो वाई टाइप करो, और अगर है तो एन टाइप कर सकते हो। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना? वेरी नाइस। चलो फिर अब देखो 12 का टेबल। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 10 जा 120। क्या आप सभी को ये समझ में आ रहा है? इसमें कोई परेशानी तो नहीं है? ओके। सो वही सेम चीज यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। यहाँ पे देखो 12 को, ठीक है, 1 टाइम लिखना होगा तो 12 को एक ही बार जोड़ेंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे, मेरी बात को समझना, जब हम बात करेंगे 12 इंटू 2 यानी 12 2 के बारे में बात करेंगे, इट मींस 12 को हमको ऐड करना पड़ेगा कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। सो वी हैव टू ऐड 12 2 टाइम्स, देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 24। इफ आई एम आस्किंग यू 12 3 then how many times you have to add 12? How many times you have to add 12? Please tell me the answer in the chat box. 3 times. Yes, very nice. So basically you have to add 12 with 3 times, then you will get the answer and that will be 36. Okay. So suppose आपसे पूछा गया 12 7 ठीक है, 12 7 तो कितना होगा आंसर? सबसे पहले ये बताओ। 12 7 72, 84। आंसर दो तरीके के आ रहे हैं, 72 और 84। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? यस, 84। गुड। सो जिन लोगों ने 72 आंसर करा था उनका आंसर गलत है ना, क्योंकि मैंने पूछा था 12 7 ओके। 84 is the correct answer. Yes, yes. So how many times you have to add 12 to get 84? How many times? 7 times. Basically, you have to add. Okay, you have to add 7 times. Okay. Yes, yes, yes. Very nice. चलो अब कुछ और एक नया तरीका सीखते हैं, है ना, टेबल बनाने का एक नया तरीका। जैसे कि आपको मालूम होगा कि अगर हम लोग 12 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स में करें, यानी 12 2 ठीक है, तो 12 2 कितना होता है? कौन बताएगा? चैट बॉक्स में बताइए कितना होता है? 24 होता है ना बेटा, ठीक है।
तो इस 24 को हम किस तरीके से ला सकते हैं और क्या तरीका हो सकता है? 24। यस यस 24 होगा। तो इसको लाने का और क्या तरीका हो सकता है? वी हैव टू लर्न दिस। सो वी कैन राइट 12 एज 10 प्लस 2, और ये इंटू 2 ऐसे ही रहने दो। देखो ये इंटू 2 है, ये भी इंटू 2 है, इसको मैंने ऐसे ही एज इट इज रहने दिया, लेकिन इस 12 को मैंने क्या लिख दिया? 10 प्लस 2। तो बताओ कोई अंतर होगा? मेरे को इतना बताओ बस, जो भी मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है क्या उसमें कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है ना। वेरी नाइस, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम चीजें हैं, ठीक है। लेकिन अब देखना, इस तरीकों को सीखना जो भी हम सिखा रहे हैं। सो मैंने पेन का कलर चेंज कर लिया। अब मेरी बात को समझना, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा आप। ये देखो 10 सर है। आपने 10 कहाँ से लिख दिया? 10 हमने लिया नहीं, इस 12 को स्प्लिट कर दिया। हमने इस 12 को स्प्लिट कर दिया। किसमें स्प्लिट किया? 10 में और 2 में। क्योंकि 10 में जब 2 आप ऐड करोगे तो क्या पाओगे? 12 ही पाओगे। बताओ ऐसा होगा या नहीं होगा? यस सर, समझ में आ गया। ओके ओके, वेरी नाइस। सो प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। ओके, सो देखो यहाँ पे ये 10 है, अब इसका मल्टीप्लाई 2 में होगा। ओके बच्चों, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस, अब इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। बेसिकली हमने करा क्या, ध्यान से देखो, इस 10 का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा 2 के साथ में, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 2 के साथ में, है ना। हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्या कर देना है हमें? डिस्ट्रीब्यूट। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? तो हम 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। किसके किसके साथ में? बेसिकली 10 के साथ में और 2 के साथ में। अब देखना 10 2 जार कितना होता है, कौन बताएगा? 10 2 जार 20 and 2 2 जार 4. When you add 20 and 4, then you will get 24. Isn't it? Are you getting my point? Are you getting my point? Okay. Yes. So ऐसे करने से मेरा पर्पस क्या था, क्यों मैंने ये करा? तो देखो, अगर आपको टेबल बनाना है, ठीक है, तो आप इस तरीके से फॉर्म कर सकते हो। यह एक बेसिक तरीका है टेबल बनाने का। ओके, सो क्लियरली मैंने आपको सिखा दिया कि 12 को मैंने स्प्लिट करा, किसमें किसमें स्प्लिट करा? 10 प्लस 2 में, और इस इंटू 2 को मैंने एज इट इज रहने दिया। इसके बाद में क्या होगा? देखो, ये 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ में, और इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ में। तो जो ही ये 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आएगा, और 10 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में होगा तो 20 आएगा। ओके बच्चों, सो बेसिकली वी कैन राइट इट 20 प्लस 4, इट मीन्स 24। चलो उस हिसाब से बताओ इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। 13 इंटू 7 जैसे मैंने अभी को सिखाया, आप अपनी कॉपी पे करिए, ठीक है, अपनी कॉपी पे करिए, सभी लोग अपनी कॉपी पे करिए। ओके, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? बच्चों मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो जिसको भी अभी को आवाज नहीं आ रही थी, भी क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो। ओके, प्लीज रीज्वाइन द क्लास, ठीक है, जिसको भी नहीं आ रही थी आवाज। हाँ, तो मैं ये आपको बता रहा था कि इसको आप कैसे लिख सकते हो। तो देखो 13 को आप ब्रेक कर सकते हो 10 प्लस 3 में, और इंटू 7 तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज। अब क्या करोगे आप? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो 10 का मल्टीप्लाई 7 में कराना होगा आपको, प्लस when you distribute 3 then you can write it 3 into 7. So the final answer will be 10 sevens are 70, 3 sevens are 21. When you add these both numbers, okay, so the correct answer will be 91. Are you getting my point? Are you getting my point?
Very nice. So please write down in your notes, or please take your screenshots so we can move further. Okay. यस यस यस, ये मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, और एक तरीका आपको सिखा रहा हूँ, हाउ विल यू गेट टेबल इफ यू वांट टू मेड इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रतिपाल सिंह के नाम से जो भी हैं। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, देखो वही सेम चीज यहाँ पे भी करी गई है। 13 को ब्रेक किया गया 10+3 में, एंड उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 7. So basically you will get 21 and 70. When you add these both numbers, then you will get the final answer, that is 91. So what will be the correct answer for 15 into 5? It means you have to tell the answer 15 5s are. First of all, please tell the correct answer in the chat box. Okay, very nice. How will you get that? How will you get that? By using the previous method? Can anyone tell me? By using the previous method, how will you get 75? Can anyone write in the chat box? Can anyone write in the chat box the previous method? चलो फिर सॉल्व करके कोई बताओ। वेरी नाइस वेरी नाइस। देखो एक बच्चा है साहिल खान के नाम से, उनका आंसर आ चुका है। वेरी नाइस। सीमा शर्मा के नाम से एक बच्ची है, यस। अक्षय, यस, वेरी नाइस। प्रियांशु, वेरी नाइस। जितने भी बच्चे हैं इन्होंने करेक्ट आंसर कराया, जो कि बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस, कीप इट अप बेटा। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो बेसिकली यू हैव यहाँ पे 15 है, ठीक है। You can write this as 10 plus 5 multiplied by 5. So distribute it. When you distribute it, then you can write it 10 multiplied by 5 plus 5 multiplied by 5. 10 5s are 50. 5 5s are 25. And when you add 50 and 25, you will get the final answer, that will be equals to 75. Are you getting my point? Are you getting my point? If yes, then type Y, and if no, then type N. Okay? Very nice. Very nice. Good. चलो बच्चों, अब हम लोग टेबल सीखेंगे, ठीक है। 11 to 15. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बच्ची ने 11 का टेबल सुनाया था, ठीक है। मैंने आपको 12 का भी टेबल यहाँ पे अभी को जस्ट पढ़ाया था, अभी सिखाया था। सो कौन है जो 13 का टेबल सुनाएगा? सबसे पहले चैट बॉक्स में बताइए। जो सुनाना चाहते हैं वे चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है। जो टेबल सुनाना चाहते हैं 13 का, वे चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है। मैं किसी एक से पूछूंगा फिर। ठीक है, ठीक है। तो नैतिक बताएंगे इस बार। नैतिक बताइए 13 का टेबल। नहीं, चैट बॉक्स में नहीं, आप माइक ऑन कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ एक बच्चा। 13 1 13, 13 2 26, 33 39, 34 52, 35 65, 36 78, 13 7 91, 13 8 104, 39 117, 13 10 130. सो स्टूडेंट्स, क्या इन्होंने करेक्ट बताया? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए, और अगर नहीं तो एन टाइप करिए। आप ही लोग बताइए सबसे पहले। गुड गुड, यस, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला बाकी बच्चे भी बताएंगे, ठीक है। तो इन्होंने जो 13 का टेबल बताया बिल्कुल करेक्ट बताया। अब हम लोग बात करेंगे 14 के टेबल के बारे में। सो कौन बताएगा 14 का टेबल? राइट डाउन योर नेम्स इन द चैट बॉक्स एंड आई विल आस्क, ओके, टू अ पर्सन। ओके, सो इस बार प्रिया बताएंगी। बताइए प्रिया। 14 1 जा 14, 42 जा 28, 43 जा 42, 44 जा 56, 45 जा 70, 46 जा 84, 47 जा 98,
48 जा 112, 49 जा 126, 40 जा 140। गुड। बच्चों बताओ, इन्होंने करेक्ट बताया? वेरी नाइस, ठीक है। चलो 14 का भी टेबल हम लोगों ने सीखा, ओके। अब 15 का टेबल कौन सुनाएगा? नाम लिखिए अपना चैट बॉक्स में, किसी एक से मैं पूछूंगा, किसी एक से मैं पूछूंगा। वेरी नाइस, सिर्फ एक बच्ची का हाँ नाम आया। चलो अब नाम आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। वेरी नाइस। रिया, साहिल, सूरज, मुस्कान, ठीक है, इतने बच्चों ने आपका नाम लिखा हुआ है। वेरी नाइस, ठीक है। रंजना, ओके ओके, ठीक है। सो इस बार बताएंगे सूरज। सूरज के नाम से जो बच्चा है, आप बताइए, बताइए 15 का टेबल क्या होगा? सूरज, अपना माइक ऑन कर सकते हैं आप और बता सकते हैं, ठीक है। चलो नहीं बताना है, ओके। रंजना, रंजना बताएंगी, ठीक है। 15 का टेबल सुनाइए। माइक ऑन करके सुनाइए। कौन? माइक ऑन है बट आपकी आवाज आ तो नहीं रही है। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। रिया के नाम से एक बच्ची है, बताइए आप। सूरज, सर हाँ हाँ, अब आ रही है आवाज। 51 जा सर 50, 52 जा 30, 53 जा 45, 54 जा 60, 55 जा 75, 56 जा 90। ओके, आगे। 15 7 जा 105, 58 जा 120, 59 जा 135, 50 10 जा 115। ओके, सो कोई बात नहीं सूरज, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप आंसर करना, ठीक है। सो बेसिकली हम लोगों ने क्या करा बच्चों, हम लोगों ने टेबल को सीखा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये टेबल लिखा हुआ है 11 to 15। ये सारे बच्चों को याद होना चाहिए, तो प्लीज इसको आप लर्न करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन बच्चों को याद है वेल एंड गुड है, ठीक है। जिनको याद नहीं है वे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको लर्न कर लेंगे आज, ठीक है। आज इसको लर्न कर लेंगे और नेक्स्ट टर्न पर मैं आपसे पूछूंगा तो आपको बताना होगा। क्या आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई कि हम आपसे क्या बोल रहे हैं? बेटा अभी भी आवाज इको हो रही है क्या? अब तो नहीं हो रही है ना? अब तो नहीं हो रही है ना? इको तो नहीं हो रही है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ओके ओके। सो क्या आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए। सारे बच्चे बताएंगे क्या मेरी आवाज आ रही है? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे और अगर नहीं तो एन टाइप करेंगे। आ रही है तो देखो, जिसको भी अभी को प्रॉब्लम हो रही थी तो प्लीज रीजॉइन द क्लास, ओके। द ऑडियो इज गुड, ठीक है। ऑडियो इज गुड, सो प्लीज रीजॉइन द क्लास, ओके। whoever the yes whoever feeling the problem, yes. सो बेसिकली मैंने आपको ये 11 to 15 का टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको सीखना होगा, बिल्कुल भी सीखना होगा और लर्न करना होगा अच्छे से बेटा, ठीक है। मैंने आपको सिखा दिया। और हालांकि मैंने 11 और 12 ये पहले ही हमने बता दिया था। अभी के लिए क्या है, 13 का टेबल देखो। 13 1 जा 13 होता है, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 9 जा 117, 13 10 जा 130, ओके। नाउ 14 का टेबल देख लेते हैं। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, 14 8 जा 112, 14 9 जा 126 एंड 14 10 जा 140। नाउ 15 का टेबल देखिए। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60,
15 5s are 75, 15 6s are 90, 15 7s are 105, 15 8s are 120, 15 9s are 135, 15 10s are 150. तो बताओ बच्चों, आगे कंटिन्यू करें? अब आगे कंटिन्यू करें? जिन भी बच्चों को आवाज की दिक्कत है, प्लीज रीज्वाइन द क्लास, ओके, बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट वॉइस इज गुड. जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं खुद बच्चों से ही पूछ रहा हूँ और बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर मेरी आवाज आप सभी को अच्छे से क्लियर है. एक बार और कंफर्म करो आप सभी लोग, इज माय वॉइस इज कमिंग? इफ यस देन टाइप वाई. ओके, तो वॉइस तो आ रही है. जिसको भी नहीं आ रही हो क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो प्लीज. ओके, so there are some questions and you have to solve it. So the first question is 12 fours are, ठीक है, 12 fours are. So what will be the correct answer? A, B, C or D? Write down in the chat box. Please write down in the chat box. Very nice. Very nice. So basically 12 fours are 48. So the correct answer will be option number D. Let's move on to the question number 2. What will be the value of 14 into 9? It means you have to find the value of 14 multiplied by 9. तो जिस भी बच्चे को टेबल याद होगा वो बेसिकली वो आंसर अच्छे से कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के. सो द करेक्ट आंसर विल बी यस, वेरी नाइस. 14 9s are 126. The correct answer will be option number B. What will be the answer for the question number 3rd? 13 7s are 13 7s are. Please write down in the chat box. Please write down the chat in the chat box. Okay, yes, so the correct answer will be 91 and that is option number B. Option number B. Question number 4. 15 3s are 15 3s are. Very nice. So the correct answer will be 45. It means option number C. Question number 5th. 11 6s are 11 6s are. What will be the value? Yes, very nice dear. 66. 66. So the correct answer will be option number A. Option number A. यहां तक सबको क्लियर है? If yes, then type Y. If no, then type N. ओके ओके, सो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए. सो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आंसर दिस इन द पोल सेक्शन. ओके, आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन. I have disabled the chat box and I have, yes, yes, poll section, yes, on, yes. Okay, please answer this question in the poll section because I have disabled the chat box. Okay, yes, कुछ बच्चों के बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं, बाकी बच्चे भी आंसर करिए. You have 30 seconds only. Only 30 seconds. Answer this question in the poll section. Okay. Answer this question in the poll. Only 5 seconds. Only 5 seconds. Okay.
only 5 seconds are left. Then I will delete poll. Okay, चलो, तो मैं पोल सेक्शन को डिलीट कर दिया हूं और चैट सेक्शन को ऑन कर दिया हूं. So please give your answer in the chat box. What will be the correct answer? Good, very nice. I can clearly see that many of you have given the correct answer. Yes. So क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑपरेशन 12 मल्टीप्लाइड बाई 4. 12 5 जार, मतलब हमें वैल्यू बतानी है कि कैसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या की लिख सकते हैं. तो आप याद करो, प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखाया जा चुका है कि अगर 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 है, इट मींस 12 को हम लोग ऐड कर सकते हैं कितने टाइम्स? तो 5 टाइम्स. सो ऑप्शन 1 देखो, 12 कितनी बार यहाँ पे लिखा गया है? देखो यहाँ पे, तो 12 को 5 टाइम्स लिखा गया है ना? तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा. अब इसी चीज को अब ध्यान से देखना, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, समझना मेरी बात को बेटा. 12 इंटू 5 है, तो इट मीन्स क्या है? ये 5 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 12 टाइम्स. 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हो कितने टाइम्स? 12 टाइम्स. सो काउंट इट 1 2, सॉरी 5 को तुम ऐड कर सकते हो कितने टाइम्स? 12 टाइम्स. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. It means option B will also be correct answer and A will also be correct answer. दो ऑप्शन तो करेक्ट हो गए. अब थर्ड वाले ऑप्शन को देखो. अभी को जस्ट मैंने अभी को सिखाया था ये टॉपिक कि अगर 12 है इस तरीके से लिखा हुआ, तो यू कैन राइट इट एज 10 plus 2 multiplied by 5. It means option number C will be also correct. Option number C will be also correct. And option D is उपयुक्त सभी. It means all of the above. All of the above. So the correct answer will be option number D. Isn't it? Have you got the point? Have you got the point? Okay, बच्चों. So the correct answer is option number D. Let's move on the next question. Question number 7. इसको भी सॉल्व करिए और इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में. Answer this question in the poll section. Okay, I have disabled the chat box. Sir, C. Chat, don't turn on your mic. Okay, क्या पता आपका आंसर गलत हो. तो बाकी बच्चों को किसी दूसरे के बताए हुए आंसर पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ अपने आंसर पे विश्वास रखना है. और आंसर कहाँ पे करना है? तो पोल सेक्शन में करना है. ऐसे माइक ऑन करके बताना तो बिल्कुल भी नहीं है. ओके, please answer this question in the poll section. Okay, you have 20 seconds left. After 20 seconds, I will delete this question. Fifteen seconds. 15 seconds. Okay. 10 seconds. Only 10 seconds. जल्दी से आंसर करो पोल सेक्शन में. जिन लोगों ने अभी तक नहीं करा है आंसर, they can answer it in the poll section. Okay.
So basically I am closing the poll section and chat section मैंने on कर दिया. Okay, so write down your answers in the chat section. Yes, I can clearly see that many of you have given the correct answer, and that will be C option, isn't it? So the question is choose the correct operation 15 multiplied by 8. आप सभी को टेबल याद होना चाहिए जैसा कि मैंने आपको सिखाया है. तो 15 8 are 120. So the correct answer will be 120. सभी को समझ में आया? Yes, sir. अगर किसी को कुछ डाउट हो, हाँ, अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, है ना? If anyone have doubt, then you can ask me. Okay. कोई डाउट नहीं है, चलो फिर ठीक है बेटा. अब हम लोग सीखेंगे 16 का टेबल. ठीक है, अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं? 16 का टेबल सीखने वाले हैं. सो कौन सुनाएगा? जो सुनाना चाहता है वो चैट बॉक्स में अपना नाम लिखिए. ठीक है, जो भी इसको बताना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे. किसी एक से मैं पूछूंगा फिर. ओके, सो साहिल क्या आप सुनाओगे 16 का टेबल? अगर हाँ तो माइक ऑन करके सुनाइए. 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, 16 8 जा 128, 16 9 जा 144, 16 10 जा 60. वेरी नाइस. बच्चों बताओ क्या इन्होंने करेक्ट आंसर दिया? गुड, वेरी नाइस. ठीक है, बिल्कुल सही है ना. इन्होंने करेक्ट आंसर दिया. अब ये जितने भी टेबल है मैं एक पेज पे ही लिख दूंगा. ठीक है, आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है. तो बेसिकली देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो. ठीक है, या फिर इसको लर्न तो रखना ही रखना है. सो 16 इंटू 1 कितना होता है? 16 होता है. एंड 16 इंटू 2 कितना होता है? ठीक है, 32 होता है. ठीक है, इस तरीके से आप टेबल लिख सकते हो. अभी इसके आगे, हाँ, इसको आगे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप इसको फॉर्म कैसे करोगे. तो देखो मैंने अभी जस्ट सिखाया था ना आपको, 16 का टेबल है या फिर किसी चीज का अगर टेबल आपको लिखना हो तो हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं उस नंबर को. तो 16 को हम लोग स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं? तो 10 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2. बताओ ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? इजंट इट? ऐसा होगा या नहीं होगा? पहले इतना बताओ. आखिर मैंने अभी जस्ट सिखाया था कि इसको स्प्लिट करके आप, है ना, स्प्लिट करके आप इस तरीके से लिख सकते हो. ठीक है, यस यस. सो एक क्वेश्चन है मेरा, सब लोग चैट बॉक्स में आंसर करेंगे. ठीक है, एक क्वेश्चन है. बताओ 16 3 जार, अगर इसको इस फॉर्म में लिखना हो कैसे लिखेंगे? 16 3 जार को चैट बॉक्स में लिखिए जिस फॉर्म में मैंने सिखाया हुआ है. ठीक है, गुड, वेरी नाइस. ठीक है, सो आप इस प्रकार से लिख करके उस टेबल को फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो. हमारा पूरा का पूरा फोकस है कि आखिर टेबल आ कैसे रहा है. बच्चों आप सभी को ये टेबल याद होगा. ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को याद होगा. लेकिन हमारा फोकस क्या है? हमें ये सीखना कि आखिर ये टेबल बना कैसे है. ठीक है, तो आप इस तरीके से फॉर्म कर सकते हो. कैसे? 16 को ब्रेक कर दो या स्प्लिट कर दो 10 प्लस 6 में और इसका मल्टीप्लाई करा दो 3 से. तो व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट इट देन यू विल गेट 10 multiplied by 3 plus 6 multiplied by 3. Now 10 3s are 30 and 6 3s are 18. So when you add 30 to 18 then you will get 48. Isn't it? क्या ये आप सभी को समझ में आया? क्लियर है? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ठीक है, तो ये एक बेसिक तरीका है टेबल को फॉर्म करने का. अब एक सिंगल पेज पे इस
पूरे टेबल को मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले तो, ठीक है, और आप इसको लर्न रखोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि कई लोगों को लर्न भी होगा, ठीक है। जिनको भी नहीं लर्न है वे इसको लर्न करेंगे, ठीक है। ओके, सो 17 का टेबल कौन सुनाएगा? चैट बॉक्स में अपना नाम लिखिए। 17 का टेबल कौन सुनाएगा? ठीक है, ओके, चैट बॉक्स में अपना नाम लिखिए। ठीक है, प्रियंका के नाम से एक बच्ची है, सुनाइए आप। प्रियंका के नाम से जो भी बच्ची है, माइक ऑन करके आप 17 का टेबल सुनाइए, ठीक है। नहीं ऑन होगा, अच्छा कोई बात नहीं। रूपा कुमारी के नाम से एक बच्ची है, आप सुनाइए। देखते हैं कौन सुनाता है 17 का टेबल। रूपा कुमारी, माइक ऑन करके आप सुना सकते हो, ओके। कोई नहीं सुनाएगा? किसी को नहीं याद है? सर मैं सुनाऊं? हाँ हाँ सुनाओ, ठीक है, आप सुनाओ। 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100, 26 जा 120, 27 जा 140, 28 जा 160, 29 जा 180, 29 जा 200। चलो ये तो आपने 20 का सुनाया, ओके। मैंने पूछा था 17 का। सर सुना दो 17 का भी। हाँ हाँ बिल्कुल, 17 का। अगर आपको लर्न है तो आप जरूर 2 सुनाओ, जा ठीक है। 34, 17 जा 20, 70 जा 34, 73 जा 51, 74 जा 68, 75 जा 85, 76 जा 112, 77 जा 129, 78 जा 156, 79 जा 100, 163, 70, 10 जा 20। देखो यहाँ पे इसीलिए आपको टेबल लिखी गई है ताकि आप इसको लर्न कर सकें, ठीक है। तो सारे बच्चे इसको लर्न रख लीजिए। क्या नेक्स्ट टर्म पे ये सारे बच्चे लर्न कर लेंगे? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए, ठीक है। मैं क्लास में इंटर होते ही आप सभी से पूछूंगा, ठीक है, और आप सभी को सुनाना होगा, ओके। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या सभी बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, सो नेक्स्ट टर्म से हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। आप सभी लोग इस टेबल को लर्न करके आओगे और मैं आपसे बारी बारी पूछूंगा, ओके। ठीक है बच्चों, तो ये क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट टर्म पे अब मिलेंगे तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।